So here the video has already been started. So good afternoon to one and all present here, or whoever watching this video according to your time. I am also a student and you are also a student, so we are doing basically what the student studies. Here I am starting my curriculum. I am starting for preparing the May 23 for the auditing and assurance, and I'm starting with the Caro 2020. I want to start with this particular topic only, therefore I am starting here. Before also I recorded everything, but what happened that due to some power off, my PC has been shut down and the entire video has been gone. So this is the 2020 reporting under companies auditors report order 2020. What does basically it means? करेक्ट व्हाट इज कारो 2020 क्या होता है तो we all people know that reporting under companies auditors report order 2020 caro 2020 an exercise of the power conferred by subsection 1 of section 143 of the companies act 2013 an exercise of the power conferred by section 143 of the companies act 2013 18 and an supersession of the auditors report order 2016. As we all people know that earlier there was Caro 2016 and afterwards what happened is what happened to my screen. Earlier there was Caro 2016 and later there was amendment that now Caro 2020 will be applicable. Correct? तो क्या हुआ था कि in exercise of the power conferred by subsection 1 of section 143 of the Companies Act 2013 and in the supersession of the Companies Auditor Report Order 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary Part 2, Section 3 of subsection 2, wide this, dated this, except as respect things done omitted to be done before such a supersession, the central government क्या हुआ था कि CJ after with the consultation with the National Financial Reporting Authority constituted under Section 132 of the Companies Act 2013 hereby makes the following order constituted following order namely ये बनाया गया था. तो क्या हुआ कि पहले 2016 था एंड उसके बाद कुछ चीज़ें ऑमिट की गई है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन नाफ्रा के साथ 2016 को फॉलो कर रहा है. से ज़्यादा डिटेल आई डोंट नो अबाउट इट एंड इतना ही लिखा है. शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट क्या है? शॉर्ट टाइटल दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020. एप्लीकेशन में क्या था? इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी. कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी की बात की है दैट इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड in clause 42 of section 2 of the Companies Act 2013 herein after referred to as the Companies Act 2013 except एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो के लिए बोला था दैट इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी. सारी कंपनी पे कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी का क्या है सेक्शन दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेफर्ड दिस. बट नॉन एप्लीकेबिलिटी कारो किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा? कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी. दिस इज वन ऑफ द मेमोरी टेक्निक which I also refer from. I also study from the Deepika Rathi ma'am. I am not a student of her, but what she used to try to use the short tricks, she mentioned there that in order to learn the non-applicability of the Caro reporting, she gave a short trick that is BIOS it. BIOS it in the sense that B stands for banking company. बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज बैंकिंग कंपनी का अलग से प्रोविजन है दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इंश्योरेंस कंपनी का भी अलग से है 1938. देयरफॉर इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है. कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. देयरफॉर सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं है. 1% कंपनीज पे नहीं है. स्मॉल कंपनीज पे नहीं है. प्राइवेट कंपनीज के कुछ क्राइटेरिया है, उसके अलावा अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते तो उस पर नहीं है. अगर अदर देन क्राइटेरिया से स्पेसिफिक बाहर जाती है वो लिमिट्स तो हो जाते हैं. तो दिस इज दी बैंकिंग कंपनीज. यहाँ से पढ़ते हैं पहले किन किन कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं है. बैंकिंग कंपनीज पे नहीं है.
इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं है, BIO, बायो दैट इज 1% कंपनी पे नहीं है, स्मॉल कंपनी पे नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं है, एग्जाम्प्ट ऑफ अ क्लास ऑफ अ कंपनी बिकॉज दीज आर एग्जाम्प्टेड बिकॉज इनके लिए अलग से प्रोविजन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस, प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं है बट प्रोवाइडेड कि ये फुलफिलमेंट हो स्पेसिफाइड कंडीशंस का। व्हाट प्राइवेट कंपनी की कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। A private limited company which is not being a subsidiary or holding of a public company having a paid up share capital and reserve and surplus one not more than 1 crore rupee as on the balance sheet date. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी भी और ना ही होल्डिंग होनी चाहिए ऑफ वो पब्लिक कंपनी की, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस शुड दैट द सेम शुड नॉट मोर देन 100 दैट द सेम शुड नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट, and which does not have total borrowing exceeding 1 crore rupee from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, and which does not have a total revenue disclosed in the schedule 3 के अकॉर्डिंग जो आपका रेवेन्यू बनता है to the companies act में including financial year, and which does not have टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज जो भी आपका शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग द रेवेन्यू जो भी है फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी इंक्लूड करके चला है इन्होंने, एक्सीडिंग 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इस लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो कारों की एप्लीकेबिलिटी प्राइवेट कंपनी पे भी लग जाएगी। बट व्हाट आर दी स्पेसिफाइड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस बोलता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट बिंग अ सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दैट द सेम शुड नॉट बी दी, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। अगर वो सब्सिडरी और होल्डिंग हो गई पब्लिक कंपनी की तो फिर कारों की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी। Then the next thing which here we are talking about is जो paid up share capital है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है दैट द सेम शुड नॉट मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, विच डज नॉट हैव अ टोटल बोरिंग एक्सीडिंग, टोटल बोरिंग जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टोटल बोरिंग शुड नॉट एक्सीडिंग दी 1 करोड़ रुपी फ्रॉम किसी भी बैंक से हो, चाहे FI से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एंड टोटल रेवेन्यू जो भी आपका डिस्क्लोज हुआ है इन शेड्यूल 2 में 3 में आई मीन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, तो इंक्लूडिंग उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी इंक्लूड करके आपका 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। अगेन दीपिका मैम ने यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि 1-1-10 यानी कि जो पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है उसके लिए था 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। फिर वापस एक का बताया था कि जो टोटल बोरिंग है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद 1-1-10 स्टैंड्स फॉर दी जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्लूड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी इंक्लूड करके वो भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल उन्हीं चीज़ों पे है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर। एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। इन द गिवन केस एजुकेटिंग चाइल्ड एक लाइसेंस इज लाइसेंस टू ऑपरेट, उसे लाइसेंस मिला अंडर सेक्शन 8 की कंपनीज है, तो कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, कारों 2020 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी एजुकेटिंग चाइल्ड अकॉर्डिंगली। करेक्ट, ये मैंने इसीलिए मार्क कर रखा है बिकॉज मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया था पूरा एंटायर एंड द होल वीडियो गेट somewhere disappear because of the shutting down of the battery of the laptop therefore। अब है अशु प्राइवेट लिमिटेड है, हैज़ अ पेड अप कैपिटल है, उसकी रिजर्व एंड सरप्लस है 50 लाख का। अशु प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है 50 लाख का ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैड बोरो, कंपनी ने क्या किया, बोरो किया
70 lakh each from a bank and a financial institution independently. Assure Private Limited एक private limited company है. अब what we need to check hereby is the private limited criteria whether it is fulfill the specified condition given under the private में दिया है वो कर रही है या नहीं. Assure Private Limited has a fully paid up capital है, reserve and surplus है 50 लाख का. During the year company had borrows ने क्या किया, कंपनी ने मतलब here the reserve and surplus वाला criteria is fulfilled because that is less than 1 करोड़. देन आगे आते हम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव लर्न दैट द रिजर्व द पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. दैट द सेम शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट द बोरिंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनी बैंक और एफआई. तो यहाँ पे 70 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड एफआई, यानी कि 70 लाख बैंक से भी है, 70 लाख एफआई से भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, यानी कि इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़. तो फिर कारो की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी. उसका टर्नओवर है 900 लाख, यानी कि 10 करोड़ से कम है. इन द गिवन केस ऑफ अश्योर प्राइवेट लिमिटेड इट हैज अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. इसमें क्या है कि जो हमारी पेड अप कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, पेड अप कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो विद इन द क्राइटेरिया है. बट हमारा टर्न ओवर भी विद इन द क्राइटेरिया है दैट द टर्न ओवर दैट द रेवेन्यू एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़. 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हावेवर इसका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बोरिंग जो 1.40 करोड़ जो कि एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से collectively from the bank or financial institution से. Therefore it fails to fulfill the condition relating to borrowings. तो ये फेल हो जाती है फुलफिल करने के लिए क्राइटेरिया को, जो भी कंडीशन रिलेटिंग है टू द बोरिंग्स से. Thus कारो 2020 shall be applicable to issue private limited accordingly. तो क्या है कि कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी लग जाती है, 2020 की एप्लीकेबल हो जाता है टू द इश्यू प्राइवेट लिमिटेड अकॉर्डिंगली बिकॉज it has not fulfilled that borrowing condition को fulfill नहीं किया है from bank, from FI at any point of time during the financial year. Auditors report to contain matters specified in para 3 and 4. Auditor की जो report है, Auditors report to contain matters, para 3 बताता है what are the matters, कि कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. पैरा 3 से हमें पता चल जाता है कि व्हाट आर द मैटर्स, ऐसे कौन से मैटर है जो कि हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड एज पर what are the matter that has to be included under para 3. Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act on the account of every company audited by him to which this order applies for the financial year commencing on and after 1st April 19 shall in addition contain the matters specified in para 3 and 4 as may be applicable, provided this order shall not apply to the auditor's report on a consolidated financial statement except clause 21 of para 3. Auditors report to para 3 बताता है that what are the matter that is to be included in the auditor's report. Section 143 जो है of a Companies Act on the account of every company audited by him, जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो विच जिसमें ये ऑर्डर अप्लाई होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st April 19 shall in addition contain the what are the matters जो कि specified है पैरा 3 में, 4 में as may be applicable, provided this order shall not apply नहीं होगा to the auditor report on consolidated वाले पे except पैरा 321 के अलावा. पैरा 321 में क्या आएगा, पैरा 321 में आएगा हमारा 321 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही बात करता है. तो उसके अलावा बाकी सारी जगह ऐसा होगा कि जितनी भी रिपोर्ट है विच इज़ मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन एंड आफ्टर दिस स्पेसिफाई किया जाएगा पैरा 3 में व्हाट आर द मैटर्स है एंड ऑल. ये सब पे एप्लीकेबल होगा, कंसोलिडेटेड पे नहीं होगा. बस उसके पैरा 321 के अलावा जो बात की है उसमें. आगे बढ़ते हैं. पैरा 3 क्या है, मैटर्स टू व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. कौन से ऐसे मैटर्स जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाएंगे.
The auditor's report on the accounts of a company to which this order applies shall include a statement on the following matters, namely मैटर्स कौन से इंक्लूड होंगे. सो ऑडिटर की रिपोर्ट है ऑन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स नेमली. उसमें क्या क्या आएगा. पैरा 3(1) इज द फिक्स्ड असेट्स वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग. ये मॉड्यूल से लिखा था, ये जो बड़ा लेटर है वो मैंने लिखा था. पैरा 3(1) क्या है. पैरा 3(1) टॉक्स अबाउट द फिक्स असेट्स के बारे में बात करता है. फिक्स असेट्स के ऊपर रिपोर्टिंग. वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग, हमें कंपनी तुम ये बताओ इस मेंटेनिंग के, अब तुमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं जो कि फुल पर्टिकुलर्स बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव डिटेल्स बता रहे हैं, सिचुएशन ऑफ द पीपीए बता रहे हैं. तो हमें क्या, एक मिनट, 1 सेकेंड, आई नीड टू ड्रिंक वाटर. पैरा 3 बता रहा है दैट व्हाट आर द कौन से मैटर्स है जो कि हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. व्हाट आर द मैटर्स दैट इज टू बी इंक्लूड करने पड़ेंगे अंडर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ अ कंपनी टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स नेमली. पैरा 3(1) के अंदर क्या आएगा. फिक्स असेट. फिक्स असेट्स में क्या बात करेगा. वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग दी. क्या जो कंपनी है क्या वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को. क्या जो कंपनी है वेदर द सेम इज मेंटेनिंग, क्या वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है विच इज शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द सिचुएशन ऑफ द पीपीए. ये बताना होगा हमें पैरा 3(1) के अंदर. फिक्स असेट्स में ही चल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं. उसमें हमें क्या बताना होगा. क्या वेदर द कंपनी क्या वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स विच इज शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग व्हाट, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ अ पीपीए. क्या जो कंपनी है वेदर द कंपनी maintaining proper records of PPE showing the full particulars, the quantitative details and the situation of the PPE. Whether the company is maintaining proper records, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को ऑफ इंटेंजिबल एसेट शोइंग दी फुल पर्टिकुलर्स. क्या वेदर दी कंपनी इज मेंटेनिंग, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स. किसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स. पहले हमने पीपी की बात की थी. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंजिबल एसेट शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स. क्या कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स को रखते हुए. तो हम क्या बोलेंगे, क्या वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीए शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द सिचुएशन ऑफ द पीपीए. नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या वो मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स. फिर हम बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर. इसमें क्या है, वेदर दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल. क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया है मैनेजमेंट ने एट रीजनेबल इंटरवल पे. क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या है, वेदर पीपीए हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल एंड इफ सो, अगर कोई भी एनी मटेरियल discrepancy were noticed on such verification, whether the same have been properly deal किया गया है या नहीं in the books of account में, वो भी आपको देखना होगा. Then next come is whether the title deeds of all the immovable property other than property where the company is leasing except other than the property. अब हमें first में हमने बात किया about the firstly we have discussed the maintaining of a proper records, then we talk about the physical verification. Now we are discussing about the title deed. What does title deed basically mean here is whether the title deed of all the immovable property other than the property
where the company is a leasee and lease agreement are duly executed in a favor of the leasee. यानी कि टाइटल डीड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज और जो लीजी वाले एग्रीमेंट्स है उसके अलावा जो भी डिस्क्लोज किए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, जो भी आपने दिखाया है टाइटल डीड्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जो भी है, जो भी आपने डिस्क्लोज किया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी? जो भी आप टाइटल डीड्स दिखा रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, क्या कंपनी है तुम्हारी है? एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ इन द फॉर्मेट बिलो। और अगर सपोज कंपनी ये जो टाइटल डीड्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी की ये तुम्हारे नेम पे नहीं है, तो तुम्हें क्या करना होगा देन? व्हाट इस फॉर्मेट में डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, डिस्क्रिप्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है उसकी, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नेम में है? अगर कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नेम में है? वेदर प्रमोटर के नाम पे है, डायरेक्टर या कोई रिलेटिव एम्प्लॉय की है, पीरियडिक हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट बताना है, रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, व्हाट इज द बेसिक रीजन क्या है, विच इज जस्ट बिकॉज कि उस नेम में नहीं है, फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी में नहीं है। ऑल्सो इंडिकेट इफ इन डिस्प्यूट, और अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में तो देन ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल देयर ऑफ हियर अंडर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बताओ, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताओ, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम पे है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर या फिर किसी रिलेटिव एम्प्लॉय की, पीरियडिक हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, और रीजन और कोई डिस्प्यूट हो तो वो भी मेंशन करना है। तो व्हाट वी हैव ऑलरेडी रीड अप टिल नाउ, व्हाट वी हैव फिक्स्ड एसेट्स के अंदर व्हाट वी हैव स्टडीड, तो पैरा 3.1 डील विद द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमने क्या पढ़ा है? फर्स्टली हमने पढ़ा था कि मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वो सारी जो भी कंडीशंस थी मेंटेन करना है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, चाहे पीपीई वाले में हो चाहे इंटेंजिबल में हो। सेकेंडली वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। देन लेटर ऑन वी डिस्कस अबाउट द टाइटल डीड्स। नाउ कम द रीवैल्यूएशन पॉइंट, whether the company has revalued its property, plant and equipment including right of use asset or intangible asset or bought during the year। whether the company has, क्या कंपनी तुमने अपनी प्रॉपर्टी को, प्लांट इक्विपमेंट को, क्या तुमने अपने पीपीई को रीवैल्यू किया है? उसमें दोनों आ जाता है, इंक्लूडिंग राइट टू यूज एसेट और इनटेंजिबल एसेट और बॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो हम क्या बोलते हैं? दैट वेदर क्या कंपनी तुमने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया है, पीपीई को, इंक्लूडिंग बहुत राइट टू यूज असेट्स भी है और इनटेंजिबल असेट भी है, और बॉट ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर सपोज रीवैल्यूएशन किया है तो जो रीवैल्यूएशन तुमने करवाया था क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही करवाया था? और स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, आपको बताना है कि कितने अमाउंट से चेंज हुआ है रीवैल्यूएशन की वजह से। एंड इफ द चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। और आपको बताना है क्या जो चेंज हुआ है क्या वो 10% या उससे ज्यादा हुआ है इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो हमें बताना होगा रीवैल्यूएशन के केस में क्या कोई रीवैल्यूएशन हुआ है, whether the company has revalued its property, plant and equipment including the right of use, including what? Including the right of use or including the right of use or intangible asset or bought during the year, and if so whether the revaluation, agar jo revaluation hua ho, let me check the battery, this is so risky term, seriously 50% it is showing still, but laptop battery is so severe। whether the company has, के कंपनी तुमने रीवैल्यू किया है अपने पीपी को, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को, उसमें इंक्लूडिंग राइट टू यूज एसेट आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट भी आ जाता है, और बॉट ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन अगर किया है, क्या रिवैल्यूएशन इज बेस्ड है ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यू, और स्पेसिफाई कीजिए आप द अमाउंट ऑफ चेंज। अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा है इन द एग्रीगेट ऑफ अ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के लेके। यहाँ पे few things I have to mention with regard to revaluation of the property, revaluation. So this I have written down about the title deeds ना, I have already written about the title deeds के बारे में नहीं लिखा था, title deeds के लिए भी I have to
whether the title deeds for the title deeds के लिए firstly I am writing for title deeds. तो whether the title deeds whether the title deeds of immovable property, here basically our title deeds, whether the title deeds, जो हमारी टाइटल डीड्स है ऑफ immovable, जो टाइटल डीड्स है ऑफ immovable properties are held in the name of company, और if not, अगर नहीं हो, if not, then provide the detail thereof. पहले तो वेदर कंपनी तुमसे ये पूछेंगे क्या टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, और नहीं है तो डिटेल प्रोवाइड करो इन द गिवन बिलो, उसमें गिवन बिलो फॉर्मेट में, फॉर्मेट. ओके, द नेक्स्ट काम इज रीवैल्यूएशन के लिए भी लिखना था, इसको हाईलाइट कर देते हैं जल्दी से. एंड द शॉर्टकट इज firstly select this two line alt h. For the revaluation wala part, what I need to write is firstly the revaluation. Revaluation में हमें क्या बताना होगा, whether the company has revalued its PP including right to use asset or intangible asset or bought during the year, यही लिखना है. तो whether the company has revalued its PP including what? Including right to use asset, including right to use asset or intangible asset. हम क्या बोलते हैं दैट वेदर तक क्या कंपनी ने रीवैल्यू किया है उसका पीपी को इंक्लूडिंग राइट टू यूज एसेट और इनटेंजिबल एसेट और बॉथ ड्यूरिंग द ईयर. रीवैल्यूएशन के लिए क्या कंपनी ने वेदर द कंपनी हैज़ यूज़ किया है, वेदर द कंपनी हैज़ रीवैल्यू किया है इंक्लूडिंग द राइट टू यूज एसेट और इनटेंजिबल एसेट और बॉथ ड्यूरिंग द ईयर. एंड इफ सो, अगर कंपनी ने किया है, इफ सो देन हम क्या बोलेंगे उसे, whether the revaluation क्या जो revaluation है the same is revaluation is किसके थ्रू हुआ है, is based on the valuation by registered valuer, whether the revaluation is based on valuation
by a registered valuer. हम क्या बोलते डायरेक्ट whether the company has revalued its PPA including the right to use asset. क्या कंपनी ने revalue किया है इसका PPA including the right to use asset or intangible asset or bought during the year. और अगर revaluation हुआ है तो whether the same is based on the valuation by registered valuer के हुआ थ्रू हुआ है या नहीं, then उसको क्या करना होगा, specify the amount. specify करना होगा, specify the, what you need to do is specify the amount of change. कितना change आया है, the amount of change कितना आया है, and if change is 10% या उससे ज़्यादा आया, if change is 10% or more, अगर change 10% और more है in the aggregate में, in the aggregate of the net carrying value of each class of PP और PP में हो या फिर intangible asset में हो, तो हम लोग देखने. I'm just highlighting here. I want to write in bullet points, but what actually happened is the battery gonna be, so I am recording up to this revaluation point only. There is one more point is of the Benami property, therefore I will discuss it later in the another video because the laptop battery is going to down.